بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ہم مدارس کے نصاب کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جو اس وقت کا اور اس سے پہلے بھی بڑا ہی اہم موضوع رہا ہے، حساس موضوع رہا ہے اور مفید بھی ہے۔ مدارس یہ ملت اسلامیہ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور مدارس ہر مسلمان کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ مدارس میں دینی تعلیم، دینی تربیت، وہ معلومات جو بچے کی شخصیت کو دنیا و آخرت کے لیے بہتر بنا سکے، اسے دین سمجھا سکے، اس کا ایمان اس میں پختہ کر سکے۔ یہ ہر ماں باپ کی، بڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ اسے سیکھ لے، جائے اور علم کی شروعات یہیں سے کرے، تاکہ اس کے اندر ایمانی حرارت ہو، ایمان کو جانے اور پہچانے، اللہ اس کے رسول کو جانے، اپنا دین جانے، اپنی آخرت کے لیے کچھ زاد راہ تیار کر سکے۔ اسی لیے مدارس اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن مدارس عمومی طور پر اپنے مقصد کے لحاظ سے اور اپنے نتیجے کے لحاظ سے، شروعات کے لحاظ سے نہیں، نتیجے کے لحاظ سے، وہ علم دیتے ہیں اور ایسے افراد پیدا کرتے ہیں جو دینی علوم کی واقفیت رکھتے ہیں یا مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان علوم سے وہ عام طور پر کم واقف ہوتے ہیں یا اتنا واقف نہیں ہوتے ہیں جس سے انہیں آج کی حالات میں، آج کی دنیا میں، آج کے پائے جانے والے علوم میں ان کو مہارت حاصل ہو سکے۔ مثلا ٹیکنیکل علوم یا میڈیکل علوم یا انجینئرنگ کے علوم یا دیگر بہت سارے علوم جو آج سائنسی علوم کہلاتے ہیں یا مینجمنٹ کے علوم کہلاتے ہیں۔ مینجمنٹ سائنس خود ایک سائنس کا ہی پارٹ ہے۔ یہ جو ہزاروں انداز کے علوم ہیں اور انسانی سماج میں جن کی بڑی ضرورت ہے اور جن کی ایک کرنٹ ویلیویشن ہے، ویلیو ہے کہ ان کو کرنے والا، وہاں جانے والا، پڑھنے والا، وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں سیٹ ہو کر اپنے اس جگہ پر پہنچ کر اپنی روزی روٹی کو حاصل کر سکتا ہے۔ مدارس ان سے یا تو بالکل ہی دور ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت ہوتا ہے جس سے وہ صرف واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ مدارس کا جو آخری مقصد ہوتا ہے اور ان کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے ان کا جو کورس ہوتا ہے، ان کی جو تعلیم ہوتی ہے، ان کے یہاں جو کتابیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں جن معلومات پر گفتگو ہوتی ہے، ان کے یہاں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ دراصل مذہبی تعلیم کو زیادہ اور سب کچھ بناتے ہیں، اس میں گہرائی پیدا کرتے ہیں، اسی کو تفصیل سے پڑھاتے ہیں۔ مذہبی علوم کو پڑھانے کے لیے وہ عام طور پر دو زبانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان، چونکہ اسلام، اس کی بنیادی تعلیمات، قرآن اور حدیث اور فقہ کی بڑی کتابیں، تفسیر اور حدیث اور احادیث کی تشریحات، جتنی بھی بڑی کتابیں دینی پائی جائیں گی وہ عربی زبان میں ہیں۔ دوسرے اردو زبان، اس لیے کہ اردو زبان میں بھی دینیات کی بڑی کتابیں موجود ہیں اور ایک نہایت ہی ثقافت کی زبان ہے، سلیقے کی زبان ہے، انسانی شخصیت کو بہتر بنانے والی زبان ہے۔ مسلمانوں کی ایک ایسی زبان جس پر انہیں فخر بھی ہے اور بجا فخر ہے، اور ایک ایسی زبان جس میں ان کا دینی مواد موجود ہے، دینی مٹیریل موجود ہے۔ فارسی زبان اس لیے پڑھتے ہیں تھوڑا بہت کہ فارسی ایک بڑی ہی اہم زبان رہی ہے۔ اسلامی تاریخ میں فارسی میں بڑی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور فارسی کو جاننا اردو کو بہتر بنانے کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے اور ایک زندہ زبان ہے۔ یہ ہے زبان کی حیثیت سے مدارس کی تعلیم۔ لیکن اصل تعلیم ہے ان مواد کی، ان موضوعات کی، ان کتابوں کی جو دراصل دینی ہوتی ہیں، اسلامی ہوتی ہیں، دینیات کی ہوتی ہیں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور تاریخ اسلام کی ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر
मदारिस में पढ़ने वाले और वहाँ से फारिग होने वाले बच्चों के जो मैदान होते हैं, जो उनके काम करने की सलाहियत होती है, वो मुतय्यन होती है, महदूद होती है। जैसे एक डॉक्टर की सलाहियत अपने फ़न में महदूद होती है, लिमिटेड होती है कि वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर नहीं होता है। एक इंजीनियर अपने फ़न में माहिर होता है लेकिन महदूद होता है, लिमिटेड होता है कि वो सर्जरी नहीं कर सकता है। इसी तरह एक आलिम वो अपने फ़न में माहिर होता है, कुरान और हदीस को समझा सकता है, समझ सकता है, मसाइल पर रोशनी डाल सकता है, फतवा दे सकता है, लेकिन वो सर्जरी नहीं कर सकता है। ये तखस्सुसात का मरहला होता है और मदारिस ज़्यादातर दीन में तखस्सुस या दीन में स्पेशलाइजेशन के लिए कायम होते हैं और यही इनका आखिरी मरहला और आखिरी नतीजा होता है। ये वो पहलू है जो मदारिस का हमारे सामने रहना चाहिए। और इस पस मंज़र में अक्सर जब गुफ्तगू होती है, चूँकि मदारिस मिल्लत इस्लामिया की जान है और मिल्लत इस्लामिया को मेडिकल की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, आलिम की भी ज़रूरत है, फ़क़ीह की भी ज़रूरत है, मुफस्सिर की भी ज़रूरत है, मैनेजमेंट के फ़र्द की भी ज़रूरत है, अच्छे इकनॉमिस्ट की ज़रूरत है, सीए की ज़रूरत है, क्लर्क की ज़रूरत है, टेक्नीशियन की ज़रूरत है। मिल्लत इस्लामिया को इन सब की ज़रूरत है। और मिल्लत का मदरसे से जो तवक्को है कि उनका बच्चा वहाँ जाकर दीन सीख लेगा, उसकी दीनी बुनियादें मजबूत हो जाएंगी तो उसकी आखिरत बन जाएगी और दुनिया तो इंशाअल्लाह वो बना लेगा। लेकिन दुनिया बना लेगा तो कैसे बनाएगा? अगर उसने तालीम नहीं हासिल की है, अगर उसने साइंस पढ़ा नहीं है तो साइंसी उलूम में महारत कैसे पैदा करेगा? अगर उसने मैथ पढ़ा ही नहीं है तो वो इंजीनियर कैसे बनेगा? अगर उसने बायो पढ़ा नहीं है तो डॉक्टर कैसे बनेगा? ये वो सवाल है जो बड़ा टेढ़ा है और इसको हल करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों की अक्ल हैरान रह जाती है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मदरसों का तालीम याफ्ता वो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता है। और जो लोग अपने मदरसों को भेजते हैं, मदरसों में जो अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके दीनदार हो और पढ़ा लिखा हो। इस मसले को हल करने की बेशुमार अच्छी कोशिशें हुई हैं, बड़ी कामयाब कोशिशें हुई हैं, मुख्तलिफ मरहलों में हुई हैं। उनका इस वक्त तफसील से जायज़ा लेना या उन पर कोई रोशनी डालना वो मुमकिन नहीं है और अभी मौजू को इतनी गुंजाइश भी नहीं है। अब हम आते हैं इस बात पर कि आखिर इस मसले को हल कैसे किया जाए। इसके लिए आज भी आवाज़ें उठती हैं, आज भी मदरसे हैं, आज भी मदरसों से तवक्कुआत हैं, आज भी मदरसों पर भेजने वालों के जज्बात हैं और वो मिल्लत का एक सरमाया है। तो आखिर इसको हल कैसे किया जाए? दरअसल इसमें एक बड़ी सादा सी बात है जो समझने की है। वो ये कि बच्चा जब इब्तिदाई मरहले में तालीम के लिए जाता है तो बाई चॉइस नहीं जाता है। चॉइस बच्चे का नहीं होता है, उसके माँ बाप का होता है। बल्कि बसा औकात माँ बाप का भी पूरा चॉइस नहीं होता है। दरअसल एक प्रेशर होता है, एक डिमांड होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक उम्मीद होती है बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में, उसकी ज़हानत के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में, उसके लगाव के बारे में, उसके रुख के बारे में। वो किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, अल्लाह ने उसके अंदर क्या पहलू रखा है। वो मैथ में कामयाब होगा या वो टेक्नीशियन बनकर कामयाब होगा या वो जाकर के सर्जरी में कामयाब होगा या वो मैनेजमेंट और कारोबार में कामयाब होगा, तिजारत में उसका दिल लगेगा, ये किसको पता है? न कोई गैब जानता है और ना अंदाजा कर सकता है। इसलिए तालीम का एक हिस्सा इस पर मुश्तमिल है कि जहां तालीम उन बच्चों को दी जाती है जो बाई प्रेशर आते हैं, बाई चॉइस नहीं आते हैं और उनकी उम्र भी ऐसी नहीं होती है। और दूसरा मरहला तालीम का वो होता है जहां इंसान बाई चॉइस इल्म हासिल करता है, वो अपने डिसीजन से इल्म हासिल करता है, फैसले से इल्म हासिल करता है, अपनी रग़बत और ख्वाहिश की बुनियाद पर हासिल करता है, अपने इम्कानात और चांसेस की बुनियाद पर हासिल करता है, अपना रुझान देखता है, उसको रुझान को
क्लियर करने वाले माहिरीन बतलाते हैं, ऐसे लोग जो एनालिसिस करते हैं उसका, जो उसे रहनुमाई करते हैं, जो उसके कैरियर को बताने के लिए उससे पूछते हैं, उसके जहन को रीड करते हैं, उसके बैकग्राउंड को समझते हैं और फिर वो तय करते हैं कि इस बच्चे का रुझान ये है, इसका कैरियर इसमें है। तो तालीम के दो मरहले बड़े अहम हैं, इसको हमें इस नाजुक पॉइंट को समझने की जरूरत है कि पहला मरहला वो बाई प्रेशर होता है, बाई चॉइस नहीं होता है, और दूसरा मरहला बाई चॉइस होता है, बाई प्रेशर नहीं होता है। इसी वजह से एक बच्चे को लगाया जाता है कि ये मैथ पढ़ेगा और 15-2 साल के बाद वो छोड़ देता है, वो कहता है नहीं हम इसमें नहीं सक्सेस है। उसको माहिरीन बतलाते हैं कि नहीं तुम छोड़ दो इसको, तुम जाकर के दूसरा काम कर लो। एक बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, 3 साल नीट में बैठता है, पूरी मेहनत करता है, फिर उसे लगता है नहीं हम नीट नहीं निकाल पाएंगे, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, हमारा रुझान दूसरा है, मैं जा रहा हूं ये काम करने के लिए, अब मैं ये तालीम हासिल करूंगा। इसीलिए इल्म की शाखें बढ़ती रहती हैं, उसके ग्राउंड अलग अलग होते रहते हैं, इंसानों की सलाहियत और इम्कानात के लिहाज से चीजें बदल जाती हैं। एक शख्स है वो डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका खर्च है 2 करोड़ रुपए और उसके घर में 2 रुपए नहीं है, कहां से पढ़ लेगा? तो इम्कानात को भी देखा जाता है कैरियर में, रगबत को भी देखा जाता है, सलाहियत को भी देखा जाता है, और यह मरहला बाद में आता है। तो बाई प्रेशर पढ़ने का मरहला शुरुआत का है और बाई चॉइस पढ़ने का मरहला बाद का है। दूसरों के मशवरे पर पढ़ने का मरहला पहला है और अपने मशवरे, अपने फैसले और अपने सूझबूझ के साथ अपने कैरियर को सामने रखकर पढ़ने का मरहला दूसरा है। अगर मदारिस में इस पहले और दूसरे मरहले के फर्क को समझ लिया जाए तो यकीन जानिए मदरसों के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, बहुत मुअस्सिर बनाया जा सकता है, बहुत मुफीद बनाया जा सकता है। मैं मदरसों ही की एक मिसाल देना चाहता हूं, शायद वो ज्यादा समझ में आए। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के सीने में कुरान महफूज हो जाए और उन्हें वो शर्फ हासिल हो जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है उन बच्चों के लिए जो हाफिज कुरान होंगे और उनके माँ बाप के लिए। बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन नतीजा क्या है? अगर 100 बच्चों को हिफ्ज कुरान के लिए बिठाया जाता है तो बहुत ज्यादा उसमें से 25 या 30 बच्चे या बहुत ज्यादा मान लें तो 50 बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। बकिया कभी नाजरे से छोड़ देते हैं, कभी 1 पारा करके छोड़ देते हैं, कभी 4 पारे कर लेते हैं, कभी 20 पारे करके छोड़ते हैं, कभी मुकम्मल कर लेते हैं, भूल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हाफिज कुरान नहीं रह जाते हैं। कितने लोग हैं? और ये होता है, हमारे आपके सामने होता है, मदरसों में होता है कि हिफ्ज के लिए एडमिशन लेने वाले आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और बीच बीच में छोड़कर जाने वालों की तादाद भी अच्छी खासी होती है। ऐसे आलिम बनाने के लिए कितने लोग अपने बच्चों को लाते हैं, आज बड़ी मिसालें हैं और मदारिस वाले ये बात जानते हैं और हम आप जानते हैं इस बात को कि हम मदरसे में अपने बच्चे को आलिम बनाने के लिए दाखिल करते हैं, लेकिन आलमियत का मरहला पार करने के बाद और डिग्री मिल जाने के बाद हमारे 50% बच्चे यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं BA MA और ग्रेजुएशन करने, PhD करने के लिए। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि अब वो बाई चॉइस तालीम हासिल करना चाहते हैं, अब वो शरिया इस्लामिया में तखस्सुस नहीं करना चाहते, मुफ्ती नहीं बनना चाहते, मुहद्दिस नहीं बनना चाहते, मुदर्रिस नहीं बनना चाहते, मुफस्सिर नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं नहीं, अब हम बनना चाहते हैं ग्रेजुएट, अब हम बनना चाहते हैं PhD करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, फला किस्म की नौकरी हम करेंगे और उसके लिए मुझे ये तालीम हासिल करनी। ऐसा होता है। आज बड़े मदारिस के 50% बच्चे वो यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, या कम से कम जो तेज और ज़हीन और नुमाया बच्चे होते हैं उनमें से एक बड़ी तादाद वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चली जाती है जिनके पास भी इम्कानात होते हैं। इसलिए हम इस मसले को हल कर सकते हैं। ये बड़ा मसला नहीं है, पेचीदा जरूर है। ये ऐसा मसला नहीं है जो नाकाबिले हल है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, पेचीदगी है, और इसी वजह से लोग उलझे रहते हैं। बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, तजर्बात होते हैं, बहुत सारे मशवरे आते हैं और बहुत सारे लानत मलामत के भी काम होते हैं। कॉलेज के लोग मदरसों को मुत्तहम करते हैं कि ये देखिए
अपाहिज बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं जो कल कोई नौकरी नहीं पाएगा, उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। और मदरसे वाले कॉलेज पर लानत मलामत करते हैं कि इन्होंने दीन नहीं सिखाया और बच्चा बेकार रह गया, किसी लायक नहीं बना, इसकी आखिरत, इसका दीन, ईमान, धर्म सब चला गया। ये जो आपस का टकराव है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन आज भी वो टकराव बाकी है, बहुत कुछ कम होने के बावजूद या बहुत सारी नई राहें खुल जाने के बावजूद। अगर हम तालीम को इन दोनों मकासिद या दोनों पसे मंजर में तकसीम कर ले, मरहले और भी तकसीम हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा दो मरहले में तकसीम कर ले। एक मरहला है जब तक तालीम बाई प्रेशर होता है, दबाव से होता है, दूसरों के अख्तियारात में होता है, और एक वो मरहला जब तालीम अपनी रग़बत, अपनी सलाहियत, अपने रुझान, अपने इम्कानात की बुनियाद पर होता है और बाकायदा करियर काउंसलिंग की बुनियाद पर होता है। पहला मरहला हर बच्चे का हक है, हर बच्चे की जरूरत है, हर बच्चे के लिए अहम है, वो चाहे मदरसे में पढ़े चाहे स्कूल में पढ़े। ये मरहला आम तौर पर अगर देखा जाए तो बच्चे के लिए 14 से 15 साल का मरहला है। 14 से 15 साल तक की जो तालीम होनी चाहिए वो इज्तिमाई और मजमूई होनी चाहिए, कुल्ली होनी चाहिए, एक विंग की नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ ली, उर्दू नहीं पढ़ी, उर्दू पढ़ ली, अंग्रेजी नहीं पढ़ी, साइंस पढ़ लिया उसने और कुरान नहीं पढ़ा, और कुरान पढ़ लिया उसने और मैथ नहीं पढ़ी, ये नहीं होना चाहिए। ये सब पढ़ना चाहिए और ये सब पढ़ सकता है। एक कितना अच्छा सर्वे है आज दुनिया में आ गया है, और पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी काज के रहनुमा है ये सब बातें लिख चुके हैं, लेकिन आज वो चीज बहुत खुल के आ गई है साइंसी बुनियादों पर कि इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग की जो सलाहियत दी है, जितना दिमाग दिया है उसका वो 2-4% इस्तेमाल करता है पूरी जिंदगी में, पूरा दिमाग पड़ा रहता है उसका। यानी गोया कि इंसान के पास इम्कानात बहुत है, दिमाग ही सबसे बड़ा बनाया है अल्लाह ताला ने। उसके हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, जिस्म और जसामत से कहीं हजार गुना, लाखों गुना बड़ा उसका दिमाग बनाया अल्लाह ताला ने। और इल्म का ताल्लुक दिमाग से है, इल्म का ताल्लुक उसकी ज़हानत से है, इल्म का ताल्लुक उसके कुव्वते हाफिजा से है, और वो सबसे बड़ा है। सर सबसे छोटा है लेकिन उसमें जो महफूज है दिमाग, वो अल्लाह ने सबसे बड़ा बनाया है, जिसको इंसान मर जाता है और इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। तो हम पहले मरहले में सब कुछ पढ़ाएं, यानी गोया 15 साल तक के बच्चे का जो प्रोग्राम डिजाइन करें। और अगर मरहले के लिहाज से आज हम कहें तो आलमियत का आधा हिस्सा, आमतौर पर बच्चे पढ़ने के लिहाज से, पैदाइश के लिहाज से नहीं, आलमियत का आमतौर पर कोर्स 8 साल का होता है। इसको हम 2 हिस्से में बांट दें। 4 साल का कोर्स कॉमन रखें, क्योंकि आमतौर पर बच्चा प्राइमरी के बाद शुरू करता है आलमियत। प्राइमरी के बाद अगर 4 से 5 साल एक आलमियत का कोर्स हम डिजाइन कर दें, और वो आलमियत का मतलब कि वो कॉलेज ना होगा, वो मदरसा होगा, लेकिन उसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस ये भी होगा। ये जरूरी मवाद है, ये जरूरी सब्जेक्ट्स है, ये पढ़ाए जाएंगे। और अगर मॉडर्न सब्जेक्ट के लिहाज से अगर आप देखना चाहें तो वो हाई स्कूल होगा, मिडिल तक की तालीम होगी, अरबी में सानविया कहते हैं इसको। इस मरहले को एक मरहला माना जाए, कॉमन मरहला माना जाए। लोगों ने अपने अपने फील्ड में कॉमन रखा है। मदारिस के पसे मंजर में हम बात कर रहे हैं कि उन्हें इस मरहले को कॉमन मरहला बनाना होगा, अपने कुरान, अपनी हदीस, अपनी फिक्र, अपनी अरबी जुबान, अपनी उर्दू जुबान को देते हुए कॉमन मरहले में आप ये सब पढ़ा दें। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं। आप ये ना सोचें माहिर पैदा होगा, मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी कि अगर दूसरे दिन इंजीनियर बनना चाहे तो बन जाएगा, कंपटीशन में जाकर के नीट में बैठना चाहे बैठ जाएगा। नहीं, इसके लिए नहीं पढ़ाना है आपको। दूसरे दिन फतवा देना चाहेगा तो मुफ्ती बन जाएगा। नहीं, इसके लिए बाकी है अभी वक्त। और तखस्सुस के मरहले को फैला दिया जाए। आमतौर पर मदारिस में फजीलत का मरहला है 2 साल का, उसे बढ़ा दिया जाए, 4 साल का कर दिया जाए, 5 साल का कर दिया जाए। यानी वो प्राइमरी के बाद जो 10-12 साल का मरहला है तालीम का, उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। प्राइमरी तो बहुत ही कॉमन चीज है। प्राइमरी में आमतौर पे मदारिस भी अंग्रेजी भी पढ़ा देते हैं, हिंदी, मैथ भी पढ़ा देते हैं, लेकिन असल मसला प्राइमरी से नहीं हल होगा।
प्राइमरी तक हिंदी अंग्रेजी मैथ पढ़ा देने से मामला नहीं हल होगा। अब इतना जानने से उस बच्चे का कोई आगे चॉइस नहीं बन पाएगा, वो बच्चा कट जाएगा, क्योंकि इल्म के लिए जो मरहला है वो कम से कम हाई स्कूल तक का है। हाई स्कूल तक के सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाना होगा और हाई स्कूल की डिग्री उस बच्चे को लेनी होगी, तब वो कॉमन तालीम में जा पाएगा, तब वो हर फील्ड में जा पाएगा, तब वो ऐसे मैदान में जा पाएगा जिस मैदान में जा करके वो अपने बाई चॉइस, अपने रुझान और अपने बैकग्राउंड की बुनियाद पर अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को, अपने करियर को बना सकेगा और कामयाब हो सकेगा। ये भी याद रखिए, एक बात आमतौर पर कही जाती है और फिर उसे काउंटर कर दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है ये कहकर कि हर फील्ड के सारे लोग कहां कामयाब होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कभी नहीं कामयाब होंगे। हर मैदान के सारे लोग कभी कामयाब नहीं होते। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को दुनिया में अपनी नेमतें देकर भेजी हैं, हर इंसान अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन क्या इस बुनियाद पर कि इंसान अल्लाह की नेमतों को नहीं इस्तेमाल कर पाता है, फला शख्स है वो बीमार हो गया और 4 साल तक बिस्तर पर रहा, उसने कुछ नहीं खाया तो हम भी इसलिए कुछ ना खाएं, ये नहीं होता है। वो इत्तेफाकात हैं, वो आजमाइशें हैं, वो आपकी किस्मत है, वो आपके लिए मुश्किलात और मसाइल हैं। इनकी बुनियाद पर प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग इन बुनियादों पर होती है कि नॉर्मल हालात में हम क्या कर सकते हैं, और तालीम की प्लानिंग नॉर्मल हालात की बुनियाद पर होती है। एक बच्चा, उसके साथ हादसा हो गया, दोनों बच्चे साथ पढ़ रहे थे, वो पीछे हो जाएगा, हादसे से जब उभर कर आएगा तो इंशाअल्लाह फिर पढ़ लेगा। ये हादसात की बुनियाद पर प्लानिंग नहीं होती है, उसकी बुनियाद पर कोर्सेज घटाए बढ़ाए नहीं जाते, उसकी बुनियाद पर निसाब नहीं बनाया जाता है। तो अगर हम बच्चे के और आज की जरूरत की बुनियाद पर एक पढ़ने वाले बच्चे और बच्ची और आज के हालात की बुनियाद पर तकसीम करना चाहें तो ये 2 तकसीम हम कर लें। और आज दुनिया ने अपने मैदान में, दुनिया यानी जिनको दीन से, पढ़ाई के एतबार से रग़बत नहीं, गर्चे वो दीन को मानते हों, उन्होंने इसी अंदाज में अपने को डिजाइन किया है। हाई स्कूल को कॉमन तालीम बना दिया उन्होंने, इंटर को कॉमन तालीम बना दिया उन्होंने, हाई स्कूल के बाद थोड़ा सा फर्क कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा डिवीजन बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, मदारिस वाले भी ऐसा कर सकते हैं। और एक और तजर्बा इसमें हम नया शामिल करना चाहते हैं, जो शाहीन का तजर्बा है। अचानक मुझे याद आया कि वो आपके सामने रख दिया जाए, हल्का सा। शाहीन ने एक तजर्बा ये किया है जो तजर्बा बड़ा अच्छा है और उसे और लोगों ने भी किया है, लेकिन दूसरे अंदाज में शाहीन ने उसको एक कोर्स बना दिया है। वो कहलाता है कि आपके अंदर जो एक मरहले से दूसरे मरहले में जाने की कोई कमी पेशी रह गई है तो उसे रिकवर किया जा सकता है। यानी एक तालीमी मरहला वक्त आपका मुकम्मल हुआ, आपके अंदर कमी पेशी रह गई, आपने बाई चांस 5 साल मदरसे में पढ़ लिया और आप जाना चाहते थे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन साइंस और बायो को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था, मदरसे में थोड़ा सा पढ़ा था। कोई बात नहीं, आपके लिए एक ब्रिज कोर्स शाहीन ने तैयार किया है, लेकिन अपने वक्त पर पढ़ना होगा उसको। आप उसे पढ़ लीजिए 3 महीने 6 महीने, और पढ़ने के बाद फिर आप बआसानी साइंस को, बायो को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक अच्छा तजर्बा आया है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने मदरसे में पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ रखा है, अब आप चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स है। तो शाहीन ने एक रास्ता हमवार कर दिया कि वो मदारिस जो बहुत अच्छी तालीम मॉडर्न नहीं दे सकते हैं, लेकिन मॉडर्न तालीम में जाने के लिए रास्ते बना दें, बच्चों का जहन तैयार कर दें, कुछ ऐसी चीजें दे दें कि अगर वो जाना चाहें, अगर उनका फैसला ये बने, जब वो फैसला करने की पोजीशन में आए, जब वो बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं और इस मरहले में आ जाएं कि वो फैसला ले अपना कि उन्हें क्या बनना है, और वो फैसला करें कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी भी साइंस के फील्ड में, मैदान में, रिसर्च में जाना है, तो उनको कोई रुकावट ना महसूस हो, महरूमी ना हो, परेशानी ना हो, उनके सामने कोई गड्ढा और खाई ना हो, बल्कि वो ये महसूस करें कि हाँ, हमने दीनी तालीम हासिल कर ली, हम उसमें पुख्ता हो गए, अब मेरे लिए ये मैदान भी खुला हुआ है। और उसके लिए शाहीन का ये कोर्स जो AICU के नाम से है, जो ब्रिज कोर्स कहलाता है, इंशाअल्लाह बड़ा काम आएगा। तो आइए हम तालीम पर आइंदा जब भी बात करें
تو اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر ان 2 مرحلوں کو سامنے رکھیں، اور پھر ان 2 مرحلوں میں چھوٹے چھوٹے 3-4 مرحلے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس انداز میں اگر ہم تعلیم کے کام کو مدارس میں منظم کر لیں تو انشاءاللہ امت مسلمہ کو اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی ہم پوری کر دیں گے، اور اس کی جو ترقی کا راستہ ہے اسے بھی ہم ہموار کر دیں گے، اور ملت مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔